لوگ خوشیوں کا جشن منا رہے ہوں گے کہ ہم جیت گئے، ہم نے یہودیوں کو ہرا دیا۔ کوئی کہنے والا پیچھے سے کہے گا اے مسلمانوں، ادھر خوشیوں کی، ادھر جنگوں کی جیتنے کی کیا خوشی منا رہے ہو؟ ادھر جا کر تمہارے گھروں کی خبر لو، تمہارے گلیوں میں کانت دجال آ گیا، تمہارے محلے میں کانت دجال آ گیا۔ ادھر مسلمان یہود و نصرانیوں سے جنگ جیتیں گے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گلی محلے میں کانت دجال کو بھیج دے گا۔ کانت دجال، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے کانت دجال کا فتنہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے قیامت تک نہ کسی نے ایسا فتنہ دیکھا ہوگا، نہ کوئی ایسا فتنہ دیکھے گا۔ دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کانت دجال کا فتنہ ہوگا۔ یہ کانت دجال کب آئے گا؟ کب آئے گا یہ؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کانت دجال کے بارے میں کتاب الفتن، کتاب اشراط الساعہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، بے شمار حدیث میں بہت ساری روایات ہیں کانت دجال کے بارے میں۔ کانت دجال دنیا میں اس وقت آئے گا جب دنیا کے تمام علماء اس کا ذکر منبر رسول پر کرنا بھول جائیں گے۔ ساری دنیا بھولی بیٹھی رہے گی کانت دجال کو۔ ایسے موسم میں اللہ کانت دجال کو دنیا میں اتارے گا۔ اور اللہ کے نبی کہتے اے میرے امتیوں، دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جو اپنی امت کو کانت دجال سے نہیں ڈرایا۔ ہر نبی نے کانت دجال سے ڈرایا ہے، اور سب سے زیادہ نشانیاں اللہ نے مجھے بتائی، میں تمہیں بتا رہا ہوں کانت دجال کیا ہوگا، سن لو۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے کانت دجال یہ مرد ہوگا، سرخ رنگ کا ہوگا، پسخد ہوگا، اور کانت دجال چوڑی پیشانی کا ہوگا۔ اس کے دو آنکھوں کے بیچ میں کافارہ کفر لکھا ہوگا۔ ہر پڑھنے والا، ہر ان پڑھ، پڑھا لکھا اور نہیں پڑھا لکھا، یہ سارے لوگ اس مکتوب کو دیکھ کر پڑھ لیں گے۔ اللہ ان کو پڑھا دے گا، وہ پڑھ پائیں گے۔ اور یہ دنیا میں جب آئے گا، اللہ کے نبی بیان فرماتے کانت دجال جب دنیا میں قدم رکھے گا تو دنیا کا وہ پہلا دن 1 سال کے برابر کا ہوگا۔ 1 سال کے برابر کا پہلا دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، 1 سال کے برابر کا کانت دجال کا پہلا دن، مطلب جب سورج نکلے گا تو 1 سال تک غروب نہیں ہوگا۔ 1 سال کا وہ ایک لمبا دن۔ کانت دجال کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر کا ہوگا۔ کانت دجال کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر کا ہوگا۔ کانت دجال کا چوتھا دن تمہارے عام دنوں کے برابر کا ہوگا۔ 40 دن اس دنیا میں رکے گا، ساری دنیا کا چپا چپا چھان مارے گا، سوائے حرمین الشریفین کے، مکہ مدینے میں نہیں جا پائے گا۔ اچھا، کانت دجال کے بارے میں ایک حدیث میں سناتا ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، جابر ابن عبداللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بے شمار روایت کے راوی ہیں اس کے۔ حضرت تمیم الداری نصرانی یہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تمیم الداری کی بڑی مشہور روایت، 30 لوگوں کے ساتھ سمندر کے ایک جزیرے پہ نکلتے ہیں تمیم الداری، اور راستہ بھٹک جاتے ہیں، طوفانوں کے ہچکولے میں ان کی کشتی بھٹک جاتی، یہ جا کر ایک جزیرے پہ رکتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہم اس جزیرے میں گئے، ایک ایسے آدمی کو ہم نے دیکھا سر سے لے کر پیر تک بالوں سے ڈھکا ہے، ہم کو معلوم نہیں اس کا منہ کدھر ہے، اس کی پشت کدھر ہے۔ ہم دیکھ کر حیران کہ بھئی یہ انسان بھی ہے یا جانور ہے۔ ہم نے پوچھا کہ بھئی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جساسہ ہے، جاؤ اس غار میں جاؤ، تمہارے خبروں کا ایک مشتاق بیٹھا ہے۔ ہم وہاں ڈرتے ڈرتے اندر گئے، ہم نے دیکھا ایک ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے، سر سے لے کر پیر اس کے گڑیا تک ساری بیڑیوں سے جکڑا گیا ہے۔ ہم نے اسے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مسیح الدجال ہوں، میں کانت دجال ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آنے پر مجھے دنیا کی علامات میں ایک علامت بنا کر اللہ بھیجے گا۔ میں چند سوال تم سے کرتا ہوں، مجھے جواب دو۔ وہ کانت دجال صحابہ اکرام کی اس ٹیم سے سوال کرتا ہے مجھے بسیان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، کیا ہے وہاں؟ وہ تو ویران ہے۔ دجال کہتا ہے بہت جلد وہاں ہرے بھرے درخت اگ جائیں گے۔ اچھا، مجھے
तिब्रिया के झील के बारे में बताओ, क्या है वहां? वो तो बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। अच्छा, एक जमाना आएगा जब तिब्रिया के झील का सारा पानी खाली हो जाएगा। मुझे उम्मियों के नबी के बारे में बताओ, क्या दुनिया के आखिरी नबी आ गए? हाँ, वो तो मबूस हो गए। क्या उनकी हिजरत हुई? हाँ, उनकी हिजरत भी हुई। क्या उनकी जंगें काफिरों से हुई? हाँ, जंगें भी हुई। नतीजा क्या निकला? कभी हम कभी वो, लेकिन हम ज्यादा जीते। काना दज्जाल कहता है तब तो मेरे निकलने का जमाना बिल्कुल करीब आ गया। अल्लाह ने मुझे यही अलामत बताए थे कि ऐ दज्जाल ये अलामत आएंगी तब तेरा निकलने का जमाना आएगा। तब तो मेरा निकलने का जमाना आ गया। तमीम अद्दारी वापस आकर अल्लाह के नबी को यह खबर देते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो मशरिक के समंदरों के जजीरे में, किसी जजीरे में वो मुक़य्यद है, मशरिक से निकल कर आएगा, अस्बहान नामी घाटी से निकलेगा जो यहूदियों का शहर होगा। अल्लाह के नबी कहते, काना दज्जाल जब दुनिया में कदम रखेगा 1 साल के बराबर का वो दिन। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, काना दज्जाल का पहला दिन 1 साल के बराबर, क्या हम उस 1 साल के 5 नमाजें पढ़े या साल भर की नमाजें पढ़े? नबी ने बयान फरमाया साल भर की नमाजें पढ़नी पड़ेगी। सूरज निकला तो साल भर नहीं डूबा। अरे ऐसा कैसा होगा जी? ऐसे कैसे मुमकिन जी? क्यों मुमकिन नहीं है? जाओ दुनिया के ज्योग्राफिक में आज की तारीख देखो। आज दुनिया के सबसे ऊपरी सतह, नीचे सतह में जिसे अटलांटिक कहते हैं, अंटार्कटिका जिसे बर्फीला इलाका कहते हैं, वहां आज भी 6 माह दिन होता है, 6 माह रात होती है। जो मेरा खालिक, जो मेरा मालिक, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया के इस निज़ाम को 6 महीने दिन 6 महीने रात, सूरज निकला हुआ डुबाता नहीं, डूबा हुआ निकालता नहीं, तो क़यामत के करीब काना दज्जाल के उस दिन 1 साल के लिए अल्लाह सूरज को क्यों नहीं रुकाएगा? वो तो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, काना दज्जाल का दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, क्या हम महीने भर की नमाजें पढ़े या 5 नमाजें पढ़े? नबी ने बयान फरमाया कि महीने भर की नमाज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। खैर, काना दज्जाल दुनिया में आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसे चंद मोजज़ात दिया रहेगा, उसे चंद पावर दिया रहेगा। वो दुनिया में आएगा और दुनिया में अल्लाह के नबी कहते हैं 70,000 यहूदी उसकी मुताबिअत में लग जाएंगे। 70,000 यहूदी, हरे कपड़े पहनने वाले, हरे चादरें पहनने वाले, उसके पीछे उसकी मुताबिअत में लगेंगे। जमीन के सारे खजाने अल्लाह ऊपर निकाल देगा। जमीन के खजाने वो जहां जहां जाएगा, काना दज्जाल के पीछे जमीन के खजाने शहद की मक्खियों की तरह घूमेंगी। काना दज्जाल आकर कहेगा, लोगों मैं दुनिया का आखिरी नबी हूं। लोग उसे नबी मान लेंगे। जब वो देखेगा कि लोगों ने मुझे नबी मान लिया, तो फिर वो अपनी नबूवत से खुदाई दावा करेगा, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला लैसा बिआयुर व इन्नल मसीह दज्जाल आयुर आयुनुल उम्ना। अल्लाह तबारक व तआला, हमारे अल्लाह में कोई ऐब नहीं, लेकिन काना दज्जाल में ऐब होगा, उसकी दाहिनी आंख नहीं होगी। दाहिनी आंख की जगह एक अंगूर के, सूखे हुए अंगूर के दाने के जैसा फुला हुआ रहेगा। हमारा अल्लाह अज़्ज़ व जल इन दुनियावी आंखों से नजर नहीं आएगा। काना दज्जाल दुनियावी आंखों से नजर आता होगा। यह सबसे बड़ी निशानी कि वो हमारा रब नहीं होगा। अगर दुनियावी आंखों से अल्लाह अज़्ज़ व जल दिखना मुमकिन होता तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह से इल्तिमास किए थे कि ऐ मेरे रब, मैं तुझे देखना चाहता हूं, अल्लाह ने क्या कहा? लन तरानी, मूसा तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता, हरगिज नहीं देख सकता। वलाकिन ज़ुरू इलल जिबल, उस पहाड़ की जानिब देख, फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फ़सौफ़ तरा, अगर वह पहाड़ अपनी जगह बरकरार रहा तो तू मुझे देख पाएगा। दुनियावी आंखों से अल्लाह अज़्ज़ व जल को दिखना मुमकिनात में से नहीं है। जब हम मरेंगे, दोबारा जिंदा किए जाएंगे, जब दोबारा अल्लाह जिंदा करेगा, वह जब आंखें देगा तो उन आंखों में अल्लाह यह तासीर देगा कि हम अपने अल्लाह को देख सके। इन दुनियावी आंखों में अल्लाह इतना पावर नहीं दिया कि हम अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल को देख सके।
काना दज्जाल हमारी दुनियावी आंखों को नजर आ रहा होगा और लोगों को फितने फैलाने के लिए चंद काम करके दिखाएगा। लोगों से कहेगा, लोगों मुझे रब मान लो, मैं तुम्हारा रब हूं। देखना चाहते हो? ये देखो, आए आसमान, चल बादल इकट्ठा हो। सारे आसमानों में बादल इकट्ठा होंगे। बादलों से कहेगा, ऐ बादलों बरसो। वो बादल बारिश, मूसलाधार बारिश बरसाना शुरू करेंगे। बारिश फिर जमीन से कहेगा, ऐ जमीन अनाज उगाना शुरू कर। जमीन देखते ही देखते अनाज उगाना शुरू करेगी। अनाज से कहेगा, ऐ अनाज तू अपनी बालियों से जुदा होकर मैदान में जमा हो जा। सारे खेत से अनाज खुद ब खुद निकल के एक मैदान में अनाज का अंबार लग जाएगा। अनाज से कहेगा कि तू आटा बन जा, वो आटा बन जाएगा। आटे से कहेगा तू रोटियां बन जा, रोटियों के ढेर लग जाएंगे। अब ये देखने के बाद कच्चे ईमान वाले, छोटे मोटे ईमान वाले तो फिसल जाएंगे। क्यों नहीं फिसलेंगे? क्यों नहीं फिसलेंगे? आज दुनिया में कोई बाबा, आज दुनिया में कोई लंबी मोटी पगड़ी बांधने वाला आया, हो मम छू मंत्र ढूम बोल के ऐसा करके बताते ही उसके हाथ में अंगूठी आ जाए। अरे हाथ का जादू करता जी उन्हें, एक नंबर का ढकोसला जी उन्हें, पाखंडी बाबा जी उन्हें। आजकल के अवाम वो पाखंडी बाबा को ऐसा दिखाता, हाथ क्या अभी नहीं रहता, हुम हुम झूम झूम भूस बोल के बताते अंगूठी आ गई। बाबा तुम्हें फिर हमारे बाबा का पैराम पड़ लेता। अस्तगफिरुल्लाह। ये दुनिया के पाखंडी बाबाओं के जादू को देखकर बाबा बोल के सजदे करने वाला अब काना दज्जाल, आसमान से बारिश, जमीन से अनाज, अनाज के आटा, आटे की रोटियां। अब ये देखने के बाद कौन नहीं फिसलता? आप बोलो, कौन नहीं फिसलता? कच्चे ईमान वाला फिसलता, कमजोर ईमान वाला फिसलता। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया का वो शख्स जो मोमिन है, जो मुवहिद है, जिसे अल्लाह के रसूल की तालीमात का इल्म है, वो हरगिज हरगिज काना दज्जाल के फितने में नहीं पड़ेगा। काना दज्जाल के फितने को देखकर समझ जाएगा ये काना दज्जाल है। और एक वादी में आएगा, कहेगा, लोगों मैं तुम्हारा रब हूं। एक बच्चा रोते बैठा रहेगा, काना दज्जाल आकर पूछेगा, क्या हुआ बेटे? मेरे माँ बाप मर गए, अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा करूं क्या मुझे रब मानेगा? हाँ मानूंगा। फिर वो खबर को लात मार के कहेगा, ऐ खबर में सोए हुए इसके माँ बाप, मुर्दा माँ बाप, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। खबर फटेगी और वहां उसके माँ बाप जिंदा होंगे। क्या हकीकत में जिंदा होंगे? नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं, दो शैतानों को इसके माँ बाप के रूप में वहां उठाएगा और जहां जाएगा लोगों को हरियाली, आसमान से बारिश, अनाज, अनाज के ढेर बहुत सारे बताएगा। लेकिन वहां से गुजरने के बाद वो मुल्क खैफजदा हो जाएगा। दिखाने के लिए 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा ही अंधेरा। गुजरने के बाद फिर वो सारा इलाका फाके से 2-4 हो जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं ये और आगे बढ़ेगा, लोगों की बहुत बड़ी वादी रहेगी। वहां लोगों से कहेगा, ऐ लोगों मैं तुम्हारा रब हूं। एक बच्चे को पकड़कर वो सर से लेकर पैर तक 2 टुकड़े करेगा। एक टुकड़े के हिस्से करके मशरिक में, दूसरे टुकड़े के हिस्से करके मगरिब में, दोनों जानिब उछाल कर उस बच्चे का नाम लेकर पुकारेगा। अब वो बच्चा जो टुकड़े टुकड़े हुआ था जिंदा होकर सामने खड़ जाएगा। अब ये मौजूदा देखने के बाद, ये करिश्मा देखने के बाद कौन नहीं पिसलेंगे? आप बोलो, कौन नहीं पिसलेंगे? अल्लाह ताला किसी भी शख्स को एक बार मार कर एक बार जिंदा करने का मौजूदा उसे देगा बस। लेकिन जो अहले हदीस होगा वो लड़का कहेगा, ऐ दज्जाल मुझे तो यकीन हो गया तू ही काना दज्जाल है, क्योंकि ये तमाम बातें तो मैंने अल्लाह के नबी के हदीस में पढ़ा था। तू किसी भी शख्स को एक बार मार सकेगा, दोबारा उसे कुछ नहीं कर सकेगा। अगर तू आखिर में हमारा रब है तो अब मुझे दोबारा मार के बता। ये कौन कहेगा? अहले हदीस कहेगा। अहले हदीस की अलामत है ये, हर बात दलील से करेगा। जब वो बच्चा कहेगा, दज्जाल को गुस्सा आएगा, हाँ ये मुझे लव कर रहा है, लिटाओ इसे, काटो इसकी गर्दन। जब गर्दन उसकी काटने के लिए तलवार रखी जाएगी, अल्लाह उसकी गर्दन को तांबे की बना देगा, तांबे की। वो कुछ नहीं कर पाएगा और वो अपनी जहन्नम में डालेगा। 2 चीजें लेकर साथ में आएगा, एक जहन्नम लाएगा, एक जन्नत लाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं ये जहन्नम दुनिया की आग, ये जन्नत दुनिया के बाग बगीचे। लोगों जो उसे रब मानेगा, लोग दज्जाल अपनी जन्नत में उठा कर डाल लेगा। जो उसे
काना दज्जाल बोलकर इनकार करेगा, उसे रब नहीं मानेगा, वो अपनी जहन्नम में डालेगा। सुनो मेरे उम्मतियों, घबराना मत। अगर तुम्हारी जिंदगी में दज्जाल आ जाए, अगर वो तुमको उठाकर जहन्नम में डाल ले, सुनो, जो दज्जाल की जहन्नम में जाएगा वो हकीकी अल्लाह की जन्नत में जाएगा। जो दज्जाल की जन्नत में जाएगा वो अल्लाह की हकीकी जहन्नम में जाएगा। और जो दज्जाल में जाए, जहन्नम में जाएगा, दज्जाल की देखने में आग होगी, उस आग में तुम कूदो, उस आग में दज्जाल तुम्हें डाले तो बिस्मिल्लाह बोलकर उस आग को उठाकर पी लेना। देखने में आग होगी लेकिन हकीकत में मीठा ठंडा चश्मे का पानी होगा। वो आग तुम्हें जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लोग वादिये मिरखनात में औरतों को, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन को एक रस्सी से बांधकर पकड़ कर बैठ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि दज्जाल के फितने में मर्द कम पड़ेंगे, औरतें ज्यादा पड़ेंगी, औरतें भागती रहेंगी उसकी तरफ। एक शख्स अपनी माँ, बेटी, बहन को रस्सी से बांधकर अल्लाह से दुआ करते बैठेगा, इलाही मेरे मुहरिम औरतों को इसके फितने में पड़ने से बचा ले, ये दुआ करते बैठेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐसे तमाम आलम में सारी दुनिया परेशान रहेगी कि क्या किया जाए दज्जाल का क्या किया जाए। ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाजिल करेगा। दिमश्क की जामे मस्जिद मिनारा शर्किया में दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आसमान से नाजिल किए जाएंगे ईसा इब्ने मरियम। अल्लाह के नबी मेराज की रात में तीसरे आसमान पर ईसा इब्ने मरियम से मुलाकात किए, सलाम दुआ किए। पूछते हैं, क्या तुम्हें मालूम है क़यामत कब आएगी? अरे अल्लाह के नबी, मुझे भी नहीं मालूम क़यामत कब आएगी, लेकिन मेरे अल्लाह ने एक बात बताई है, क़यामत जब आएगी उससे पहले अल्लाह मुझे दुनिया में मबूस करेगा ना, जिंदा वापस अल्लाह उतारेगा और मेरे हाथों से दज्जाल का कत्ल होगा। इस बात का इल्म अल्लाह ने मुझे दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं, जामे मस्जिद के मिनारा शर्किया पर दज्जाल उतरेगा। फजर की अजान हुई है, इकामत हुई है, सारे लोग नमाज के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। हजरत ईसा इब्ने मरियम आएंगे, लंबे लंबे जुल्फों वाले, उनके बालों से पानी के खतरे टपकते होंगे। ऐसा लगेगा ये गुस्ल खाने से आ रहे। मन अंत या अखी मन अंत, तुम कौन हो? अना ईसा इब्ने मरियम। अरे आप ईसा इब्ने मरियम, चलिए आगे बढ़िए, नमाज पढ़ाइए। नहीं, ये शर्फ अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को दिया, मैं तो इख्तिदा करूंगा, उम्मत मुहम्मदी का मुख्तदी बनकर नमाज पढ़ूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे 3 काम करेंगे। नंबर 1, अल्लाह के नबी कहते हैं सारे खिंजीरों को दुनिया से कत्ल कर देंगे। सुलेब नामी निशान जो ईसाइयों के चर्च पर या खबरों पर होता है, वो सुलेब नामी निशान को मिटा देंगे। और नंबर 3, दुनिया से इनकम टैक्स हटा देंगे, जिजिया दुनिया से खत्म कर देंगे, सारी दुनिया से इनकम टैक्स हटा दिया जाएगा। और ईसा अलैहिस्सलाम सांस लेंगे, इनकी सांस की गर्मी से काफिर ऐसे पिघलेंगे जैसे नमक पानी में पिघलता है। ईसा अलैहिस्सलाम बाबुल लुद के पास दज्जाल को पकड़ेंगे और एक भाले से उसे मारकर हल्लक में अपने भाले से मारकर उसका कत्ल कर देंगे। जब दज्जाल मरेगा सारे यहूद और नसरानियों को पता चलेगा हमारा रब मर गया, भागेंगे सारे। उस वक्त अल्लाह के नबी कहते हर दरख्त, हर टीला, हर पत्थर, हर मकान, हर दरो दीवार इंसानों जैसे बात करेगी। या मुस्लिम ताल हिनक हाजा यहूदी फखलिफली फख्तुलहु। ऐ अल्लाह के बंदे इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा बैठा है, इसे पकड़ के कत्ल कर दे। सिवाय बरगद के दरख्त के वो बात नहीं करेगा, उसके अलावा दुनिया के हर दरख्त, हर टीले, हर पत्थर, हर दरो दीवार बात करेगी। ये क़यामत की निशानियों में की एक निशानी होगी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की हुकूमत देगा, अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा, मुसलमानों को दौलत देगा, अमन व सुकून होगा। 7 साल हुकूमत करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम।
7 सालों में 33 बरस में जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे, इसी 33 बरस में नाजिल किए जाएंगे, शादी करेंगे, इनकी बीवी होंगे, बच्चे होंगे। 7 सालों में दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का झंडा गाड़ देंगे ईसा अलैहिस्सलाम, और एक नहर पर शेर बकरी पानी पिएंगे, बच्चे सांपों से खेलेंगे, वो सांप बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सारी दुनिया में अल्लाह अमन फैला देगा। एक एक अनार 40 कबीले वालों के लिए काफी हो जाएगा। एक एक गाय का दूध 40 कबीले वाले सैर होकर पिएंगे। बरकतों का मौसम। अल्लाहु अकबर। ऐ मुसलमानों, ऐ साहिबगंज, ऐ बरहेड़ के मेरे भाइयों, अतराफ अकनाफ से आई हुई मेरी माँ बहनों, आज हम लोग एक ऐसे जमाने में पैदा हुए हैं जिस जमाने में ये इदारे चलाने के लिए, ये मदरसे चलाने के लिए, ये बनात चलाने के लिए आपसे ज़कात मांगी जाती है, आपसे सदका तो खैरात मांगा जाता है, आपसे आखिरत की नजात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में इन्फाक फी सबीलिल्लाह के लिए सवाल किया जाता है। शुक्र पैदा करो, अल्लाह ने इस जमाने में हमें पैदा किया। जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे, अल्लाह इतनी दौलत देगा, इतनी दौलत देगा, सारे मुसलमान अपनी दौलत को लेकर, ज़कात को लेकर दर दर भटकेंगे, गली गली, नगरी नगरी, डगरी डगरी घूमेंगे। कसम मेरे अल्लाह की, सारी दुनिया में इनका ज़कात लेने वाला एक भी शख्स नहीं मिलेगा। ज़कात देने के लिए भिखारियों की तरह घूमेंगे, लेकिन ज़कात लेने वाला एक भी शख्स नहीं मिलेगा, एक भी शख्स नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। हर आदमी को अल्लाह इतनी सरवत, इतना माल, इतनी दौलत से माला माल अल्लाह कर देगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज को दुनिया में लाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, आज वो दुनिया में एक दरख्त के, एक दीवार के पीछे, जिसे सद्द ज़ुल्क़रनैन कहते हैं, क़ालू या ज़ुल्क़रनैन इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ फ़हल नजअलु लका ख़रजा अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। ज़ुल्क़रनैन से उन्होंने कहा कि ऐ ज़ुल्क़रनैन, ये याजूज व माजूज के फितने से हमें बचा ले, हमको बचा ले, इसके फितने से हम तंग आ चुके हैं। ज़ुल्क़रनैन ने लोहे की तख्तियाँ बांधकर, शीशा पिघलाकर एक दीवार बनाकर इसके पीछे अल्लाह ने इनको कैद कर दिया। ये गिड्डे गिड्डे 2 फीट के, 1-1 फीट के, 2-2 फीट के, 3-3 फीट के, इनका सरदार 3 फीट का होगा, और ये सारे कबीले वाले 2-2 फीट के होंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं, सब ज़ुल्क़रनैन को चाटते हैं, ये जिस चीज को चाटेंगे वो पिघलना शुरू होगी। रोजाना सुबह से शाम तक चाटते हैं, शाम में इतना सुराख तैयार कर लेते हैं। नबी ने कहा, लोगों, याजूज माजूज ने अपनी दीवार में इतना सुराख तैयार कर लिया, अपनी शहादत की उंगली अपने अंगूठे की उंगली से मिलाकर नबी ने इशारा करके बताए, याजूज माजूज ने इतना सुराख तैयार कर लिया, लेकिन इंशाअल्लाह भूल जाएंगे, इंशाअल्लाह नहीं कहेंगे। दूसरे दिन आएंगे, देखेंगे फिर दीवार मोटी, फिर चाटेंगे। क़यामत के करीब इनके सरदार को इनके जहनों में इंशाअल्लाह याद दिलाएगा। इनका सरदार कहेगा, कल इंशाअल्लाह आकर हम इसे चाट कर बड़ा होल करके दुनिया में जाएंगे। दूसरे दिन तक वो होल जैसे का वैसा रहेगा, उसे चाट कर दुनिया में पुदक पुदक के आएंगे, सारी दुनिया में फैल जाएंगे। क्या समझते हो आप लोग याजूज और माजूज को? क्या समझते हो आप लोग? अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, याजूज और माजूज की मुकाबला दुनिया की कोई रॉकेट, दुनिया का कोई बम, दुनिया का कोई मिसाइल, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर पाएगी। इतने ताकतवर, इतने पावरफुल होंगे याजूज और माजूज। कौन होंगे ये? किस नस्ल से होंगे ये? अल्लाह के नबी कहते, नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम, याफिस, याफिस की औलाद में से ये याजूज और माजूज होगी। याजूज और माजूज, अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं, जब याजूज और माजूज दुनिया में आएंगे, बुहैरे तिब्रिया का, झील का सारा पानी पी जाएंगे, सारी दुनिया में फैल जाएंगे, मुसलमान इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान पहाड़ों की वादियों में छुप जाएंगे और दुआ करने लगेंगे, अल्लाह इनके फितने से बचा ले। सारे चप्पे चप्पे में फैल गए, सारी दुनिया वालों को हटा मिटा देंगे।
اور خبر آئے گی کہ مشرق مغرب شمال جنوب کوئی نہیں، اب یہ چھوٹی کمان تیر لے کر آسمانوں میں چلائیں گے۔ اللہ کی قدرت بھی نرالی، ان کے تیر آسمان میں جائیں گے، چند لمحے کے لیے اللہ ان کے تیروں کو غائب کر دے گا، پھر ان کے تیریں ان کے قدموں میں گریں گی، ان تیروں کے نوک پر خون لگا رہے گا۔ یہ یاجوج و ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو مٹا دیا تھا، اب ہم نے آسمان والوں کو بھی مٹا دیا۔ زمین و آسمان والے مٹ گئے، اب حکومت ہماری۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، مومن دعا کریں گے، اے اللہ یاجوج و ماجوج کے فتنے سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کے گردن میں ایک پھوڑا پیدا کرے گا، ایک پھوڑا، ایک زخم جو موٹا ہوگا پھوٹ جائے گا، جس کے گردن میں وہ زخم پھوٹے گا وہ وہی مر جائے گا۔ ساری زمین یاجوج و ماجوج کے لاش سے بھر جائے گی، زمین کا ایک بالشت حصہ بھی یاجوج و ماجوج کے لاش کے بنا خالی نہیں رہے گا، ساری زمین ان کے لاشوں سے بھر جائے گی۔ لوگ دیکھیں گے کہ بھئی یہ کیا، اب ان کی لاشوں کی بدبو سے لوگوں کا جینا محال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام مومن دعا کریں گے، اے اللہ تعالیٰ ان یاجوج و ماجوج کے لاشوں سے، ان کی بدبو سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ اس وقت زمین پر ایسے پرندے لائے گا، بڑے بڑے لمبے لمبے اونٹ کے گردنوں جیسے، بڑے بڑے پیر کے پنجوں میں، اپنی چونچوں میں ان یاجوج و ماجوج کے لاشوں کو لے کر زمین کے کون سے حصے میں لے جا کر پٹکیں گی، اللہ کے سوا کوئی اس کے علم کو نہیں جانتا۔ اب زمین صاف کر دی جائے گی، پھر مینا برسے گا، پھر سے دولت کی انبار ہوگی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں زمین پر جو فتنہ اب آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک دھواں اللہ تعالیٰ آسمان سے نکالے گا، یوم یاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انتظار کرو اس دن کا، یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جب یہ دنیا چند نشانیاں لے کر آئیں گی، کسی کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اس سے پہلے جو کچھ کہ تم نے بھلائی کی تھی وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ان نشانیوں کو دیکھ کر جو بھی تم خیر کرنا چاہو تمہاری کسی کام نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ایک دھواں نازل کرے گا، ایک دھواں آئے گا جس کے بارے میں سورہ دخان کی 10 اور 11 آیت میں اللہ کہتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، انتظار کیجئے آسمان سے اس دھواں کا جو ایک دھواں اللہ کے عذاب علیم کو لے کر آئے گا۔ يَخْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ، لوگوں پر غشی طاری کرے گا، اللہ کی جانب سے دردناک عذاب ہوگا۔ سارے دھواں سے زمین بھر جائے گی، مسلمانوں کو زکام ہوگا، کافروں کے چہرے مس کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد زمین 3 جگہ سے دھسا دی جائے گی، خسوف ثلاثہ جسے کہتے ہیں، ایک مشرق میں جاپان میں، ایک مغرب میں امریکہ میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں، جزیرۃ العرب میں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ اللہ نکالے گا، اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے، جو بھی وہاں آئے گا مارا ماری کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، قتل غارت گیری سے مر جائے گا، ایک بھی شخص سونا لے کے نہیں جائے گا۔ 100 آدمیوں کا قافلہ آئے گا، 99 وہی مر جائیں گے، ایک آدمی سونا لے کے واپس جائے گا لیکن وہ بھی دنیا کے فتنوں کا شکار بن جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی زمین سے ایک جانور نکالے گا جسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ سورہ نمل کی 82 آیت میں اس کا ذکر اللہ کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، جب اللہ تعالیٰ اپنے قول کے مطابق زمین سے جانور نکالے گا، وہ لوگوں جیسے بات کرے گا، وہ کہے گا لوگوں میں اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہوں، تم یقین نہیں کرتے تھے نا، یہ دیکھو اللہ نے مجھے لا دیا۔ اللہ اکبر، انسانوں جیسے بولنے والا دابۃ الارض،
दाब्बा कहते हैं जानवर, अर्थ कहते हैं जमीन, जमीन का जानवर अल्लाह निकालेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मुसलमानों को काफिरों को अलग करेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं मगरिब से सूरज तुलू होगा, मगरिब से सूरज तुलू होगा। आज रोजाना मशरिक से सूरज निकलकर मगरिब में जाता है। किधर है जी मगरिब? मगरिब किधर है? इधर है। आज रोजाना मशरिक से सूरज निकलकर मगरिब में डूबता है। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, ऐ मेरे उम्मतियों, क्या तुम्हें मालूम है ये सूरज जो मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबता है ये कहाँ जाता है? अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने। अल्लाह के नबी हमें नहीं मालूम। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह के अर्श के सामने सजदा रेज होता है, अल्लाह से इजाजत तलब करता है, मेरे मौला तेरा क्या हुक्म है? अल्लाह तेरा क्या हुक्म है? अल्लाह कहता है मशरिक से निकलना, मगरिब में डूबना, फिर वो डूबता है, फिर सजदा रेज होता है, अल्लाह से इजाजत मांगता है, यहाँ तक कि अल्लाह उसे इजाजत देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। एक दिन आएगा जब अल्लाह से इजाजत तलब करेगा, मेरा मालिकुल मुल्क कहेगा, ऐ सूरज अब तक जहां से तू निकल कर जहां डूबा करता था, जहां डूबा करता था वहां से निकलना, जहां से निकला करता था वहां पर डूबना। मतलब मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबता था ना, आज मगरिब से निकलकर मशरिक में डूबना। दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा। अल्लाह अकबर, दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा। सूरज मगरिब से निकलेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं बादिरु बिल आमालि सित्ता, लोगों 6 निशानियां दुनिया में रूनुमा होने से पहले नेकियां करने में जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल कबूल नहीं करेगा। वो कौन कौन सी है? खासकर इंसान को तौबा 2 वक्त आने से पहले कर लेना चाहिए। वो एक वक्त इंसान के हल्लक के आखिरी गरगरारे शुरू होने से पहले, आखिरी गरगरारे शुरू होने से पहले अल्लाह के नबी कहते हैं इन्नल्लाह ला यक़बिलु तौबतल अब्द मा लम युगरगर। इंसान के हल्लक के आखिरी गरगरे शुरू होने से पहले तक अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है। जब उसके आखिरी गरगरारे शुरू होते हैं अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करता। मतलब सकरात लगने से पहले, तुम्हारी सकरात की हालत आने से पहले तुम्हारी तौबा सुनी जाएगी, सकरात आने के बाद तौबा नहीं सुनी जाएगी। मेरे भाइयों, सूरज जब मगरिब से निकलेगा लोग ये देखकर हैरान होंगे, आज सूरज मगरिब से कैसे? लोगों को यकीन होगा क़यामत आ गई, लोग सजदा रेज़ होंगे, लोग ईमान लाना शुरू करेंगे, लोग तौबा करना शुरू करेंगे। क्या होगा? अल्लाह के नबी कहते हैं ला यनफ़उहा ईमानुहा वला यक़बलु तौबा, न किसी की तौबा सुनी जाएगी, न किसी का ईमान कबूल किया जाएगा। सूरज मगरिब से निकलने से पहले तौबा कर लो। अल्लाह के नबी कहते हैं इधर सूरज मगरिब से उठाया जाएगा, उधर आसमान में तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद मुल्क यमन से एक आग निकाली जाएगी, मुल्क यमन से एक आग निकाली जाएगी। ये आग सारे लोगों को मैदान महशर की जानिब हाँकेगी, सारे लोगों को मैदान महशर की जानिब जमा करेगी। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये थे क़यामत की 10 बड़ी अलामात, अलामात सुगरा के साथ अलामात कुबरा।